Very good morning, students. I hope you all are well and revised your previous lesson. So, today I am here to make you understand your next chapter, which is about charts in MS Excel. That means हम यहाँ पे पढ़ेंगे how we are going to uh, understand or make charts in MS Excel. Basically, charts are the graphical representation of our data, which makes it easier and presentable, easier to understand, and looks more attractive to the audience. So, in this chapter, we are going to cover few topics which are charts, advantages of chart, components of chart, types of chart, creating a chart, quick way to insert chart, and inserting spark lines. So, these are the few topics which we are going to cover in this lesson. Now, first comes is charts. What is chart? So, charts are used to represent the data in इनटू अ ग्राफिकल एलिमेंट मतलब चार्ट्स क्या है चार्ट्स है जिन्हें हम यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट द डेटा इन इनटू अ ग्राफिकल एलिमेंट which makes it very easy to interpret the data. It becomes very useful if our data is very large. मतलब basically charts की मदद से if we have a complex or a large amount of data, it makes it very easier to interpret. That means easier to understand and looks more presentable. Excel provides various charts to represent the Excel data and makes it very easy to understand and analyze the data compared to the Excel cells data analysis. मतलब बेसिकली हमारे पास एक्सेल के अंदर सेल्स के अंदर डेटा होता है तो ये कंपैरेटिवली इजी होता है कि हम चार्ट्स वाले डेटा को आसानी से क्या कर सके अंडरस्टैंड कर सके. Charts help us make instant decisions based on the comparison of numbers. यानी कि charts की मदद से क्या हो पाता है easy decision making हो जाती है due to the comparison of numbers in a very easy manner. They also help us analyze and evaluate the worksheet conveniently. As compared to simple presentations, charts are more attractive and appealing. मतलब जो हमारी normal presentations होती हैं उससे थोड़ा ज्यादा attractive और appealing होता है हमारा representation in charts. Now advantages of chart. Chart के हमारे पास क्या advantages हैं? First is clarity. Charts provide a clear visual representation of data, making complex information easier to understand at a glance. मतलब अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन है तो हम चार्ट्स की मदद से उसको एक इजी फॉर्म में करके उसको हम समझ सकते हैं. तो ये क्या हमें प्रोवाइड करता है क्लैरिटी यानी कि एक्यूरेसी हमें प्रोवाइड कराता है. देन कंपैरिजन. Charts allow for easy comparison of different data sets or categories, identifying trends, patterns and variations. मतलब charts की मदद से हम क्या कर पाते हैं easily comparison कर पाते हैं between different type of data. Then communication. Charts enhance communication by presenting data in visually appealing and understandable format, making presentations more engaging and impactful. यानी कि charts क्या है एक बहुत अच्छा way of communication है जो क्या करता है लोगों तक अपनी जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है उसे पहुंचाता है इन अ वेरी अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट और वो क्या करता है रिप्रेजेंट करता है हमारे डेटा को एक एंगेजिंग मैनर में जो और वो कैसा होता है इम्पैक्टफुल होता है. देन समराइजेशन. चार्ट्स कंडेंस लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इनटू कंसाइज विजुअल फॉर्मेट फैसिलिटेटिंग डेटा एनालिसिस एंड समराइजेशन. मतलब चार्ट्स के अंदर हम कॉम्प्लेक्स डेटा को भी कैसे कर सकते हैं एक समरी के फॉर्म में लिख सकते हैं उसे हम छोटी डिटेलिंग करके हम चार्ट्स के अंदर लिख सकते हैं. तो बेसिकली वो क्या करता है कॉम्प्लेक्स डेटा का एक समराइजेशन कर देता है उसकी एक छोटी सी समरी प्रिपेयर कर देता है. ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन. चार्ट्स हेल्प इन आइडेंटिफाइंग ट्रेंड्स आउटलाइनर्स एंड anomalies in data, aiding in data analysis, forecasting and decision making. यानी कि चार्ट्स क्या करते हैं चार्ट्स एक प्रॉपर ट्रेंड फॉलो करते हैं दैट मीन्स वो कोई एक प्रॉपर हमारा फॉर्मेट फॉलो करते हैं जिसकी मदद से क्या होता है डेटा एनालिसिस में हमें फायदा मिलता है फोरकास्टिंग में फायदा मिलता है और डिसीजन मेकिंग में हमें बेनिफिट मिलता है. Now decision making. Charts assist in decision making by providing insights into data relationships and trends, enabling informed data driven decision. यानी कि चार्ट्स की मदद से क्या होता है हम एक बहुत अच्छी डिसीजन मेकिंग कर पाते हैं एज वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड प्रीवियसली. नाउ व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ चार्ट. चार्ट के क्या कंपोनेंट्स होते हैं. Components of chart in Excel include various elements that together create a visual representation of data. मतलब एक्सेल के अंदर चार्ट्स के बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो टुगेदर मिलके क्या करते हैं हमारे डेटा का रिप्रेजेंटेशन करते हैं.
Here are the key components of the chart. Chart area. The entire area within the chart's boundaries where the graphical representation of data is displayed. चार्ट एरिया क्या है, यानी कि चार्ट की बाउंड्रीज के अंदर जो भी हमारा एरिया है जहां पे हम क्या करेंगे, अपना ग्राफिकल डेटा को पुट करेंगे, वो हमारा होता है चार्ट एरिया. देन प्लॉट एरिया. द एरिया विद इन द चार्ट वेयर एक्चुअल डेटा पॉइंट्स, बार्स, लाइंस और अदर चार्ट एलिमेंट्स आर प्लॉटेड. यानी कि प्लॉट एरिया होता है हमारे चार्ट के अंदर का एरिया जहां पे हम क्या करते हैं, हम एक्चुअल डेटा पॉइंट्स या फिर हमारे पास जो भी बार्स होते हैं, लाइंस होती हैं या हमारे एलिमेंट्स होते हैं, हम उन्हें वहां पे प्लॉट करते हैं. देन व्हाट आर एक्सिस? The horizontal x-axis and vertical y-axis lines that establish the scale and units of measurement for the data. एक्सिस होती है हमारे पास चार्ट के अंदर, एक हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस होती है और एक वर्टिकल वाई एक्सिस होती है, जो क्या करती हैं, हमारे चार्ट्स में यूनिट ऑफ मेजरमेंट को रिप्रेजेंट करती है हमारे डेटा के लिए. They provide reference points for interpreting the data values. वो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, वो हमें रेफरेंस पॉइंट प्रोवाइड करते हैं ताकि हम क्या कर सके, अपनी डेटा वैल्यूज को इंटरप्रेट कर सके. तो दिस इज व्हाट अ चार्ट लुक्स लाइक. यानी कि यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, एक्सिस टाइटल होता है. ये हमारे पास क्या है, ये वाली जो लाइंस हैं इन्हें हम बोलेंगे अपनी ग्रिड लाइंस. ये हमारे चार्ट का टाइटल होता है. देन वी हैव हियर डेटा सीरीज, डिफरेंट डिफरेंट डेटा सीरीज, एंड दीज आर दी लेजेंड. देन ये हमारी क्या है, वाई एक्सिस. ये हमारा प्लॉट एरिया है जहां पे हम अपने एलिमेंट्स को प्लॉट करते हैं. और ये हमारा है डेटा लेबल, जहां पे हम जो टाइप ऑफ डेटा हम यहाँ पे डाल रहे हैं हम उसको लेबल करेंगे. तो दिस इज व्हाट अ चार्ट इंक्लूड्स. नाउ एक्सिस टाइटल्स. एक्सिस टाइटल्स क्या होता है? Labels that describe the axis and provide context for understanding the data. यानी कि वो लेबल्स जो क्या करते हैं, जो डिस्क्राइब करते हैं हमारी एक्सिस को और हमारे कॉन्टेक्स्ट को प्रोवाइड करते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग द डेटा, ताकि हम क्या कर सके, अपने डेटा को अंडरस्टैंड कर सके. दे टिपिकली इंक्लूड द नेम ऑफ द डेटा सीरीज एंड द यूनिट ऑफ मेजरमेंट. और ये क्या इंक्लूड करते हैं, हमारी डेटा सीरीज का नेम और यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट. Then what are data series? The individual set of data points or values that are represented on the chart. यानी कि हमारे चार्ट के ऊपर जो भी इंडिविजुअल सेट होते हैं डेटा पॉइंट्स के या फिर वैल्यूज के, उन्हें हम क्या कहते हैं, डेटा सीरीज बोलते हैं. ईच डेटा सीरीज इज टिपिकली डिस्प्लेड यूजिंग अ स्पेसिफिक चार्ट एलिमेंट सच एज बार्स, लाइंस और पॉइंट्स. यानी कि हमारे चार्ट के अंदर जो भी डेटा सीरीज है वो किसी भी चार्ट के स्पेसिफिक एलिमेंट को यूज करके शो करते हैं, चाहे वो बार्स हो, लाइंस हो, पॉइंट्स हो या कुछ और हो. नाउ द नेक्स्ट इज लेजेंड. A key that identifies each data series or category represented in a chart. यानी कि कोई भी एक ऐसी की जो हमारी डेटा सीरीज को या फिर हमारी कैटेगरीज को आइडेंटिफाई करती है हमारे चार्ट के अंदर, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम लेजेंड बोलते हैं. इट हेल्प्स यूजर्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स, पैटर्न्स और सिंबल्स यूज्ड इन द चार्ट. और ये हमें मदद करता है कि हम क्या अंडरस्टैंड कर सके, मीनिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स, पैटर्न्स या फिर जो हमारे सिंबल्स हैं हमारे चार्ट के अंदर, उनको अंडरस्टैंड करने में ये हमारी हेल्प करता है. नाउ वी हैव डेटा लेबल्स. टेक्स्ट लेबल्स एसोसिएटेड विद इंडिविजुअल डेटा पॉइंट्स इन अ चार्ट प्रोवाइडिंग एडिशनल इंफॉर्मेशन सच एज एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द डेटा पॉइंट. यानी कि टेक्स्ट लेबल्स क्या होते हैं, ये वो टेक्स्ट लेबल्स, डेटा लेबल्स होते हैं जो क्या करते हैं, हमारे इंडिविजुअल डेटा पॉइंट को चार्ट के अंदर प्रोवाइड कराते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन, जैसे कि एग्जैक्ट वैल्यू या फिर डेटा पॉइंट. Then grid lines. Horizontal and vertical lines that extend across the plot area. Horizontal और vertical lines जो हमारे extend होती हैं across the plot area, वो हमें क्या प्रोवाइड करती है, रेफरेंस ग्रिड प्रोवाइड कराती हैं फॉर इंटरप्रेटिंग द डेटा वैल्यूज, ताकि हम हर डेटा वैल्यू को इजिली अंडरस्टैंड कर सके, इंटरप्रेट कर सके. Then chart title. A descriptive title that summarizes the overall purpose of the theme of the chart. यानी कि एज द नेम सजेस्ट टाइटल, चार्ट टाइटल क्या करता है, ये हमारे चार्ट की ओवरऑल थीम को डिस्क्राइब करता है कि हमारा जो चार्ट है वो किस पर्पस से हम बना रहे हैं. इट हेल्प्स यूजर टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द डेटा बीइंग प्रेजेंटेड. ये हेल्प करता है यूजर्स को ये समझने में कि जो डेटा प्रेजेंट हो रहा है वो किस कॉन्टेक्स्ट में हो रहा है. देन
chart elements. Additional elements such as trend lines, error bars, annotations, and shapes that can be added to the chart to provide further analysis or insights. यानी कि चार्ट एलिमेंट्स वो एडिशनल एलिमेंट्स होते हैं जिन्हें हम अपने चार्ट के अंदर एडिशनली यूज कर सकते हैं टू मेक इट मोर impressive or to make it more easier. So that is what chart elements are, and there are few examples like trend lines, error bars, annotations, shapes, etc. Now, types of charts. Excel provides different kinds of charts from pie chart to bar chart and many more. Let us study about them one by one. Now, the first come is column chart. Column chart क्या होता है? Column chart are used to represent the data in a vertical chart using the vertical bars. मतलब कॉलम चार्ट होता है जिसके अंदर हम अपने डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग वर्टिकल बार्स. ये जो हमारे पास ब्लू रेड येलो ग्रीन बार्स हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं? बार्स. और ये कैसे हैं? वर्टिकल हैं, अपसाइड डाउन और लाइक दिस. तो ये हमारे वर्टिकल बार्स होते हैं जिनको यूज करके हम क्या क्रिएट करते हैं? कॉलम चार्ट क्रिएट करते हैं. दिस टाइप ऑफ चार्ट इजीली रिप्रेजेंट change over time because it is used to compare values across categories. यानी कि इस चार्ट के अंदर हम जो बार्स यूज करते हैं वो क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज का, और यहाँ पे हमें पता चलता है कि ओवर टाइम क्या क्या चेंजेस अकर हुए हैं. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वर्टिकल बार चार्ट. और इसको हम क्या कहते हैं? हम कॉलम चार्ट को वर्टिकल बार चार्ट भी बोलते हैं. कॉलम चार्ट इज ऑल्सो नोन एज वर्टिकल बार चार्ट. In a column chart, categories are typically organized along with horizontal axis and values along with vertical axis. Column chart के अंदर जो categories होती हैं वो कैसे categorize होती हैं? यहाँ पे हमारे पास horizontal axis पे हमारी categories रहती हैं and vertical axis पे हमारी क्या रहती हैं? Values. यानी कि 0, 100, 200, 300, 400, 500 ये हमारी जो वैल्यूज हैं ये वर्टिकल साइड पे रहती हैं और हॉरिजॉन्टल साइड पे हमारी क्या रहती है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरीज. देन कम्स इज बार चार्ट. बार चार्ट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन अ टेबुलर फॉर्मेट एज वेल एज इन अ पैटर्न ऑफ कॉलम्स. बार चार्ट को हम टेबुलर फॉर्मेट में भी कर सकते हैं और हम इसको एज ए पैटर्न ऑफ कॉलम्स भी यूज कर सकते हैं. This chart shows data changes over a period of time. ये जो चार्ट है ये भी क्या शो करता है? चेंजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो कर होते हैं उन्हें शो करता है. एंड कंपैरिजंस विद सम स्पेसिफिक एंड इंडिविजुअल आइटम्स. और ये कुछ सम स्पेसिफिक इंडिविजुअल आइटम्स या फिर किसी भी स्पेसिफिक चीज में कंपैरिजन भी शो करता है. दिस इज हाउ अ बार चार्ट लुक्स लाइक. ये हमारा क्या है? ये हमारा बार चार्ट है. देन लाइन चार्ट. लाइन चार्ट क्या होता है? लाइन चार्ट इज द मोस्ट हेल्पफुल एंड रिप्रेजेंटिंग द ट्रेंड्स. लाइन चार्ट को हम यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट ट्रेंड्स. दिस कैन बी वेरी यूजफुल टू एनालाइज द अप्स एंड डाउन्स इन अ रेंज ऑफ डेटा ओवर अ पर्टिकुलर टाइम स्पेन. यानी कि ये हमें क्या शो करता है? टाइम स्पेन में जो अप्स एंड डाउन चीजें अकर हुई हैं ये हमें वो शो करता है. द डेटा पॉइंट्स इन चार्ट आर कनेक्टेड विद द लाइंस. चार्ट के अंदर जो डेटा पॉइंट्स होते हैं हम उन्हें एक लाइन के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं. जैसे ये हमारा एक पॉइंट है एंड वी हैव दिस पॉइंट. दीज आर डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स वी हैव और इन्हें हम क्या करते हैं? लाइन के थ्रू आपस में कनेक्ट कर देते हैं. तो ये हमारा क्या बना देता है? ये हमारा लाइन चार्ट बना देता है. द डेटा पॉइंट इन अ चार्ट आर कनेक्टेड विद द लाइंस. यानी कि एज आई शो यू. देन in a line chart, the category of data is distributed evenly along the horizontal axis and the value data along the vertical axis. इसमें भी क्या होता है? यहाँ पे जो कैटेगरीज है वो कहाँ रहती हैं? वो हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे रहती हैं और जो हमारी वैल्यूज है वो कहाँ रहती हैं? वो हमारी वर्टिकल एक्सिस पे ही रहती हैं. Then the next is area chart. Area chart क्या होता है? Area charts are used to display graphically quantitative data. यानी कि ग्राफिकल क्वांटिटेटिव डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एरिया चार्ट का यूज करते हैं. इट इज सिमिलर टू द लाइन चार्ट एंड बेस्ड ऑन इट. ये लाइन चार्ट के जैसा ही होता है और उसी पे बेस्ड होता है. द एरिया बिटवीन द लाइंस इज फिल्ड विद कलर. यहाँ पे क्या होता है? जो लाइंस के बीच में एरिया है, जैसे यहाँ पे वी हैव दिस लाइन एंड वी हैव दिस लाइन, और इनके बीच में जो ये एरिया था इसको हमने क्या किया? येलो कलर से फिल कर दिया. देन
They are easy to analyze as they are similar to the line chart showing ups and downs in the data. ये भी डेटा के अंदर जो फ्लक्चुएशन होता है, जो अप डाउन होता है, उसको शो करता है, और ये कैसा है, लाइन चार्ट जैसा ही है, इसलिए ये क्या है, बहुत इजी टू एनालाइज और अंडरस्टैंड है. देन वी हैव अ पाई चार्ट. पाई चार्ट क्या होता है? दिस इज हाउ अ पाई चार्ट लुक्स लाइक. पाई चार्ट कैसा होता है? सर्कुलर शेप में हम रिप्रेजेंट करते हैं. दिस चार्ट इज अ शेप ऑफ राउंड पाई कट इनटू स्लाइसेस. यानी कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक राउंड सर्कल है और एक राउंड पाई है, जिसे हमने क्या कर रखा है, वेरियस वेरियस पीसेस में हमने यहाँ पे इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है टू रिप्रेजेंट स्पेसिफिक डेटा. ठीक है. इट डिस्प्लेज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच वैल्यू टू द टोटल वैल्यू. ये हमें क्या बताता है, हमें छोटी छोटी चीजों का कॉन्ट्रीब्यूशन बताता है टू द टोटल वैल्यू. रिप्रेजेंटेड बाय ओवरऑल पाई. Data series is shown in the form of comparative size of things. The data points of a pie chart are displayed as percentage of the whole pie. यानी कि यहाँ पे जो डेटा रिप्रेजेंट करते हैं हम उसको परसेंटेज में रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारा जो ये पूरा का पूरा 100% है, उसमें से 41% कहाँ गया, 5% कहाँ गया, 12%, 17% एंड 25%. तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमारी जो ओवरऑल पाई की परसेंटेज है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं यहाँ पे और अपने डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं. देन वी हैव डोनट चार्ट. डोनट चार्ट क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन डेटा सीरीज. इसके अंदर एक से ज्यादा डेटा सीरीज को हम इंक्लूड करते हैं. इन दिस चार्ट ईच रिंग रिप्रेजेंट्स वन डेटा सीरीज. यहाँ पे एक ईच जो रिंग होती है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, एक डेटा सीरीज को रिप्रेजेंट करती है. इट शोज द रिलेशनशिप ऑफ पार्ट्स ऑफ अ होल. ये यहाँ पे पूरे के पूरे होल जो हमारे पास पार्ट है उसके रिलेशनशिप्स को यहाँ पे ये शो करता है. इट इज वेरी मच सिमिलर टू पाई चार्ट, बट पाई चार्ट में हमारे पास परसेंटेज होती है डेटा रिप्रेजेंटेशन के लिए, एंड यहाँ पे वी यूज अ डिग्री साइन. देन स्कैटर चार्ट. व्हाट इज अ स्कैटर चार्ट? The scatter chart and the line chart are almost similar. Scatter chart और line chart almost similar होते हैं, but the scatter chart is displayed with a scribble in line, whereas the line chart uses a connected line to display the data. देखो लाइन चार्ट में हम क्या करते हैं, हमारे पास दो पॉइंट्स होते हैं और हम उन्हें लाइंस के थ्रू ऐसे ऐसे कनेक्ट करते चले जाते हैं पॉइंट्स को. बट स्कैटर चार्ट में क्या यूज करते हैं हम, यहाँ पे हम स्क्रिबल को यूज करते हैं, लाइक दिस, these dots. इनको हम ये स्क्रिबल बोलते हैं जिसमें हम अपने डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं. सो दिस इज हाउ अ स्कैटर चार्ट लुक्स लाइक. देन रेडर चार्ट. रेडर चार्ट क्या होता है? अ रेडर चार्ट प्लॉट्स डेटा इन कंसेंट्रिक इरेगुलर सर्कल्स. यहाँ पे क्या होता है, रेगुलर चार्ट, रेडर चार्ट के अंदर जो डेटा है वो कंसेंट्रिक इरेगुलर सर्कल्स पे हम रिप्रेजेंट करते हैं. Each data series has its own value arising from the center point. यानी कि यहाँ पे जो भी डेटा सीरीज है उनकी अपनी एक रेंज, अपनी एक वैल्यू है सेंटर पॉइंट से लेके. ठीक है. लाइंस कनेक्ट ऑल वैल्यूज इन द सेम सीरीज. और जो लाइंस हैं वो क्या वो कनेक्ट करती हैं सारी वैल्यूज को इन सेम सीरीज. ऐसे. ठीक है. देन 3D सरफेस चार्ट. 3D सरफेस चार्ट क्या होता है? इट शोज द थ्री डायमेंशनल व्यू ऑफ डेटा. ये हमारे डेटा का थ्री डायमेंशनल व्यू हमें शो करता है. अ टोपोग्राफी मैप इज एन एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ डेटा. और टोपोग्राफी मैप क्या है? इस टाइप के डेटा का एक एग्जांपल है. देन स्टॉक चार्ट. दिस टाइप ऑफ चार्ट इज आइडियल फॉर ट्रैकिंग द स्टॉक मार्केट एक्टिविटी. तो इस तरीके का जो ये चार्ट होता है ये हमारे को स्टॉक मार्केट एक्टिविटी ट्रैक करने में हेल्प करता है. देन देयर इज अ सब्जेक्ट इंटीग्रेशन व्हिच सेज waterfall chart illustrates how an initial value is affected by a series of positive and negative changes useful for showing financial data or project performance. यानी कि वाटरफॉल चार्ट होता है जो क्या इलस्ट्रेट करता है, इलस्ट्रेट करता है कि कैसे जो इनिशियल वैल्यू होती है वो अफेक्ट होती है हमारी सीरीज से बाय बीइंग पॉजिटिव और नेगेटिव चेंजेस. तो वो हमारे लिए यूजफुल होते हैं टू शो फाइनेंशियल डेटा और प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस. हमारे प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस या फिर फाइनेंशियल डेटा को शो करने में वो हमारी हेल्प करता है. देन वी हैव क्रिएटिंग अ चार्ट. चार्ट को कैसे क्रिएट करना है? अ चार्ट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. वी ऑल नो दैट. You can create a chart to compare data and view patterns and trends easily. यानी कि हम क्या करते हैं, चार्ट्स को बनाते हैं
ताकि हम क्या अंडरस्टैंड कर सके, पैटर्न्स को और ट्रेंड्स को इजीली अंडरस्टैंड कर सके. आफ्टर क्रिएटिंग अ चार्ट यू कैन यूज चार्ट टूल्स in the on the ribbon to fine tune the chart to display and explain the data. हमारे पास यहाँ पे फीचर है कि हम अपने चार्ट को क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा चेंजेस हम उसमें क्रिएट कर सकते हैं. Step 1. Enter the and format the data as shown in the project by using the various features of Excel. So now what we have to do is we have to select the range of data that we want to format. तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, अपने डेटा पे वो रेंज सेलेक्ट करेंगे जिस भी डेटा को हमें, जितने भी डेटा को हमें फॉर्मेट करना है. देन क्लिक ऑन इंसर्ट टैब. हमें फिर क्या करना है, हमें इंसर्ट टैब पे क्लिक करना है. देन क्लिक ऑन अ चार्ट टाइप फ्रॉम द चार्ट्स ग्रुप. फिर हम चार्ट ग्रुप में क्या करेंगे, चार्ट टाइप पे क्लिक करेंगे, है ना. फिर हम क्या करेंगे, चार्ट्स ग्रुप में चार्ट टाइप पे क्लिक करेंगे. देन क्लिक ऑन अ चार्ट स्टाइल. फिर हमें क्या करना है, चार्ट स्टाइल पे क्लिक करना है. इन दिस एग्जाम्पल वी हैव सिलेक्टेड कॉलम चार्ट टाइप. और इस एग्जाम्पल में हमने क्या सिलेक्ट किया है, कॉलम चार्ट टाइप को हमने यहाँ पे सेलेक्ट करा है. एक्सेल इमीडिएटली क्रिएट्स अ चार्ट एंड प्लेसेस इट ऑन द वर्कशीट. एक्सेल इमीडिएटली क्या करता है, हमारे चार्ट को क्रिएट कर देता है और हमारी वर्कशीट पे प्लेस कर देता है. एक्सेल डिस्प्लेज टू चार्ट टैब्स डिजाइन एंड फॉर्मेट फॉर वर्किंग विद द चार्ट. एक्सेल क्या करता है, डिस्प्ले कर देता है दो चार्ट टैब्स को, ताकि हम क्या कर सके, वर्किंग कर सकें विद आवर चार्ट. देन if you want to move the chart to its own sheet, click on move chart location on the design tab and choose new sheet. अगर हमें क्या करना है, मूव करना है अपने चार्ट को अपनी ओन शीट पे, तो हम क्या करेंगे, क्लिक ऑन मूव चार्ट लोकेशन. मूव चार्ट लोकेशन पे क्लिक करके वी विल डिजाइन टैब के अंदर से एंड देन वी विल चूज न्यू शीट. नाउ क्विक वे टू इंसर्ट चार्ट. चार्ट्स को इंसर्ट कैसे करना है, सेलेक्ट द रेंज ऑफ डेटा दैट यू वांट ऑन द चार्ट. सबसे पहले हम रेंज ऑफ डेटा सेलेक्ट करेंगे जिसे हमें चार्ट पे क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है. क्लिक ऑन क्विक एनालिसिस स्मार्ट टैग. फिर हम क्या करेंगे, क्विक एनालिसिस स्मार्ट टैग पे क्लिक करेंगे. क्लिक ऑन चार्ट्स टैब. हमने चार्ट्स टैब पे जाना है. एक्सेल डिस्प्लेज द चार्ट टाइप्स रिकमेंडेड ऑफ योर डेटा. फिर एक्सेल क्या करेगा, हमें कुछ चार्ट टाइप शो करेगा जो हमारे डेटा के लिए रिकमेंडेड है. देन क्लिक द चार्ट टाइप यू वांट टू यूज. वहां से हम अपना चार्ट टाइप चूज कर लेंगे जिसे हमें यूज करना है. एक्सेल इंसर्ट्स द चार्ट. और एक्सेल क्या करेगा, हमारे चार्ट को इंसर्ट कर देगा. देन वी हैव मूविंग एंड रीसाइजिंग अ चार्ट. यू कैन मूव एंड रीसाइज योर चार्ट ऑन योर वर्कशीट टू मेक द चार्ट इजियर टू रीड. देन मूविंग अ चार्ट. मूव कराने के लिए व्हाट वी हैव टू डू इज क्लिक ऑन एम्प्टी एरिया ऑफ द चार्ट. सबसे पहले चार्ट के एम्प्टी एरिया पे हमें क्लिक करना है. एक्सेल सेलेक्ट्स द चार्ट एंड सराउंड्स इट विद बॉर्डर एंड हैंडल्स. एक्सेल क्या करेगा, उस चार्ट को सिलेक्ट करेगा और उसके जो बॉर्डर्स होंगे वहां पे वी हैव अ हैंडल. द माउस पॉइंटर चेंजेस टू दिस. और जो माउस पॉइंटर है वो इस पे चेंज हो जाएगा. क्लिक एंड ड्रैग द चार्ट टू द लोकेशन यू वांट. और इसको हम प्रेस करके अब ड्रैग करके उस लोकेशन पे ले जा सकते हैं जहां पे भी हमें अपना चार्ट चाहिए. रिलीज द माउस बटन. फिर हमें माउस बटन को रिलीज करना है. एक्सेल मूव्स द चार्ट. एक्सेल ने क्या करना है, फिर एक्सेल उस चार्ट को मूव करने लग जाएगा. देन रीसाइजिंग अ चार्ट. चार्ट को रीसाइज कैसे करेंगे, क्लिक ऑन एन एम्प्टी एरिया ऑफ द चार्ट. एक्सेल सेलेक्ट्स द चार्ट एंड सराउंड्स इट विद हैंडल्स. सिमिलरली मूव द माउस ओवर द हैंडल टू द ऑफ द चार्ट. द माउस पॉइंटर चेंजेस टू दिस. अब की बार हमारा जो माउस पॉइंटर है वो इस पे चेंज होगा. क्लिक ऑन अ हैंडल एंड ड्रैग इट टू रीसाइज द चार्ट. फिर हम इस हैंडल को क्लिक करके इसको ड्रैग करेंगे तो हमारा जो चार्ट का साइज है वो चेंज होने लगेगा. अ शेडेड बॉर्डर रिप्रेजेंट द चार्ट एज यू रीसाइज इट ऑन द वर्कशीट. और एक शेडेड बॉर्डर से रिप्रेजेंट होता है जब भी हम अपने चार्ट को क्या करते हैं, रीसाइज करते हैं ऑन आवर वर्कशीट. देन वी हैव टू रिलीज द माउस बटन. एक्सेल रीसाइजेस द चार्ट. और हमारा जो एक्सेल है वो हमारे चार्ट को क्या कर देगा, रीसाइज कर देगा. So students, there is a brain booster which says Gantt chart shows project schedules, timelines and dependencies with tasks represented as horizontal bars along a timeline. यानी कि कुछ हमारे पास गैंट चार्ट्स होते हैं जो क्या शो करते हैं हमें, प्रोजेक्ट के स्केड्यूल्स को, टाइमलाइंस को और डिपेंडेंसीज को विद टास्क रिप्रेजेंटेड एज, विद टास्क जो कैसे रिप्रेजेंटेड होता है, हॉरिजॉन्टल बार्स की मदद से अलोंग अ टाइमलाइन. Then changing the style of a chart. चार्ट के स्टाइल को कैसे चेंज करना है, you can change the chart style to change the appearance of the chart. Click on an empty area of the chart. सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने चार्ट के empty area पे we have to click.
देन क्लिक ऑन डिजाइन टैब, क्लिक ऑन अ न्यू चार्ट स्टाइल फ्रॉम द चार्ट स्टाइल ग्रुप। फिर हम क्या करेंगे, चार्ट स्टाइल ग्रुप में से न्यू चार्ट डिजाइन पे हम जाएंगे। एक्सेल अप्लाइज द न्यू स्टाइल टू द एग्जिस्टिंग चार्ट। फिर क्या होगा कि हमारा जो एक्सेल है वो क्या अप्लाई कर देगा, एक नया न्यू चार्ट डिजाइन अप्लाई कर देगा जो जिसको भी हम सिलेक्ट करेंगे। देन एड चार्ट टाइटल, टाइप द टाइटल ऑफ इन द चार्ट टाइटल। चार्ट टाइटल में हमें अपने चार्ट का टाइटल देना है। देन चेंजिंग द टाइप ऑफ चार्ट, चार्ट के टाइप को कैसे चेंज करेंगे। इफ यू वांट टू चेंज द चार्ट टाइप टू प्रेजेंट योर डेटा मोर इफेक्टिवली आफ्टर क्रिएटिंग अ चार्ट, तो मतलब अगर हम एक चार्ट क्रिएट कर चुके हैं और अगर हमें चार्ट टाइप को चेंज करना है तो हाउ वी आर गोइंग टू डू इट। क्लिक ऑन एन एम्प्टी एरिया ऑफ द चार्ट, क्लिक ऑन डिजाइन टैब, click on change chart type button, the change chart type dialog box appears। हमारे पास एक ये ऑप्शन बटन होता है कि चेंज चार्ट टाइप, हमें उस पे जाना है, हमारा एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। देन क्लिक ऑन द डिजायर्ड चार्ट स्टाइल। फिर हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, अपना कोई भी यहाँ पे ऑल चार्ट्स का हमें ग्रुप मिल जाता है और फिर यहाँ से हम अपने डिजायर्ड चार्ट स्टाइल को यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। क्लिक ऑन द डिजायर्ड चार्ट टाइप, देन द कॉन्फ़िगरेशन यू वांट टू यूज, click on OK। हमने वो चूज किया and then we are going to click OK। Excel changes the chart to the chart type you have selected। Then there is a brain booster which says chart can include trend lines which help to identify trends and patterns। charts क्या यूज कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं ट्रेंड लाइंस को जो हमें हेल्प करती है टू आइडेंटिफाई ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स इन अ डेटा, एज वेल एज forecasting capabilities for predicting future trends based on historical data। यानी कि एज वेल एज हम यहाँ पे forecasting capabilities को भी देख सकते हैं जो क्या करेगी, फ्यूचर ट्रेंड्स को प्रिडिक्ट करेगी एज पर हिस्टोरिकल डेटा। There is also one brain booster. Box and whisker plot provides a visual summary of the distribution of data, including the median, quartiles, and outliers. Then inserting spark lines. Spark lines को कैसे हम insert करते हैं? Now, in Excel, spark lines are tiny word-sized charts that can appear in a cell। स्पार्क लाइंस क्या होती हैं? स्पार्क लाइंस एक वर्ड के साइज जितने चार्ट्स होते हैं जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, अपने सेल पे अप्लाई कर सकते हैं। एक्सेल इंक्लूड्स 3 टाइप्स ऑफ स्पार्कलिंग चार्ट्स, लाइन, कॉलम एंड विन लॉस। ये 3 टाइप ऑफ स्पार्कलिंग चार्ट्स हमारे पास होते हैं। यू कैन एड स्पार्क लाइंस टू मल्टीपल रोज और कॉलम्स एट अ वंस। और हम एक ही टाइम पे मल्टीपल रोज या फिर मल्टीपल कॉलम्स में स्पार्क लाइंस को ऐड कर सकते हैं। To insert sparklines in Excel, which are small, simple charts that fit into a single cell, are used to visually represent data trends. You can follow these steps. First of all, what we need to do is click on cell where you want to insert the sparkline। सबसे पहले हम उस सेल को सिलेक्ट करेंगे जहां पे हमें स्पार्कलाइन को ऐड करना है। Navigate to insert tab in the Excel ribbon। Excel ribbon में जाके we are going to click on insert tab। In the sparklines group, you will find options for different types of spark lines like line, column and win loss। यहाँ पे हमारे पास insert टैब के अंदर sparkline ग्रुप में हमें तीनों ऑप्शन मिल जाते हैं, line, column and win loss। Choose the type of sparkline you want to insert। हम उस sparkline को चूज करेंगे जो भी हमें चाहिए। Excel will prompt you to select the range of data। अब यहाँ पे Excel बोलेगा कि you have to select a particular range of data जहाँ पे आपको इसे अप्लाई करना है। Then click and drag to select the range of cells containing your data। और फिर हम क्या करेंगे, क्लिक और ड्रैग करेंगे, उन सेल्स को सिलेक्ट करेंगे जिसे भी हमें चेंज करना है। After selecting your data range, you will be asked to specify the location where you want the sparkline to be displayed। यानी कि जब हम अपने डेटा रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे तो वो हमसे पूछेगा कि आपको वो लोकेशन पूछेगा कि हमें जो अपनी स्पार्क लाइन हमें डिस्प्ले करनी है वो कौन सी लोकेशन पे करनी है। दिस कैन बी इन द सेम रो, कॉलम एज योर डेटा और अ डिफरेंट लोकेशन ऑल टुगेदर। यानी कि वो हो सकता है मे बी इन अ रो, मे बी इन अ कॉलम या फिर कोई और लोकेशन इन आर डेटा। देन once you have selected the data range and location for the spark line, click OK to insert it। जब हमने अपनी लोकेशन और हमने अपना टाइप सारी चीजें सिलेक्ट कर ली हैं, then we have to click on OK to make it insert। Then the sparkline will now be displayed in the selected cell representing the trend of the data over the specified range।
You can customize the Sparkline further by changing its style, color, and other formatting options from the Sparkline Tool Design tab that appears when you have a Sparkline selected. जब भी हम Sparkline को अपने cells के अंदर, rows, columns के अंदर add कर देते हैं, तो we have an option to make changes further if we want by using Sparkline Tool Design tab. There is a brain booster combination of two or more chart type, example column and line charts to visualize different aspects of the same data. यानी कि हम यहाँ पे कॉम्बिनेशन भी क्रिएट कर सकते हैं ऑफ टू चार्ट, जैसे कि कॉलम एंड लाइन चार्ट, ताकि हम क्या विजुलाइज कर सकें, डिफरेंट एस्पेक्ट्स को एक ही डेटा के, यानी कि एक ही डेटा के डिफरेंट एस्पेक्ट्स हो सकते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स. So students, this was a complete chapter about charts in MS Excel, that how we can create different types of charts, कैसे हम उसमें inserting कर सकते हैं, कैसे हम उसमें changes create कर सकते हैं. I hope the chapter is clear to you. To revise the chapter and practice the exercises, I will see you in your next video with next chapter. Till then, take care. Bye bye.